آپ سن رہے ہیں عصمت چغتائی کی کہانی لحاف۔ جب میں زانوں میں لحاف اوڑھتی ہوں تو پاس کی دیوار پر اس کی پرچھائی ہاتھی کی طرح جھومتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور ایک دم سے میرا دماغ بیتی ہوئی دنیا کے پردوں میں دوڑنے بھاگنے لگتا ہے، نہ جانے کیا کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کو خود اپنے لحاف کا رومان انگیز ذکر بتانے نہیں جا رہی ہوں، نہ لحاف سے کسی قسم کا رومان جوڑا ہی جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں کم از کم آرام دہ سے ہی، مگر اس کی پرچھائی اتنی بھیانک نہیں ہوتی جتنی جب لحاف کی پرچھائی دیوار پر ڈگمگا رہی ہو۔ یہ تب کا ذکر ہے جب میں چھوٹی سی تھی اور دن بھر بھائیوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ مار کٹائی میں گزار دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں کم وقت اتنی لڑکا کیوں تھی۔ اس عمر میں جبکہ میری اور بہنیں عاشق جمع کر رہی تھی، میں اپنے پرائے ہر لڑکے اور لڑکی سے جوتم پیجار میں مشغول تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں جب آگرہ جانے لگی تو ہفتہ بھر کے لیے مجھے اپنی ایک منہ بولی بہن کے پاس چھوڑ گئی۔ ان کے یہاں اماں خوب جانتی تھی کہ چوہے کا بچہ بھی نہیں اور میں کسی سے بھی لڑ بھی نہ سکوں گی، سزا تو خوب تھی میری۔ ہاں، تو اماں مجھے بیگم جان کے پاس چھوڑ گئی، وہی بیگم جان جن کا لحاف اب تک میرے ذہن میں گرم لوہے کے داغ کی طرح محفوظ ہے۔ یہ وہ بیگم جان تھی جن کے غریب ماں باپ نے نواب صاحب کو اس لیے داماد بنا لیا کہ وہ پکی عمر کے تھے، مگر تھے نہایت نیک۔ کبھی کوئی رنڈی بازاری عورت ان کے یہاں نظر نہ آئی۔ خود حاجی تھے اور بہتوں کو حج کروا چکے تھے، مگر انہیں ایک نہایت عجیب و غریب شوق تھا۔ لوگوں کو کبوتر پالنے کا جنون ہوتا ہے، کوئی طوطے پالتا ہے، کسی کو مرغبانی کا شوق ہوتا ہے۔ ان سے صاحب کو نفرت تھی۔ ان کے یہاں تو بس طالب علم رہتے تھے، نوجوان گورے گورے پتلی کمروں کے لڑکے جن کا خرچ وہ خود برداشت کرتے تھے۔ مگر بیگم جان سے شادی کر کے تو وہ انہیں کل ساجو سامان کے ساتھ ہی گھر میں رکھ کر بھول گئے، اور وہ بیچاری دبلی پتلی نازک سی بیگم تنہائی کے غم میں رلنے لگی۔ نہ جانے ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے جب وہ پیدا ہونے کی غلطی کر چکی تھی، یا وہاں سے جب وہ ایک نواب کی بیگم بن کر آئیں اور چھپرکٹ پر زندگی گزارنے لگی، یا جب سے نواب صاحب کے یہاں لڑکوں کا زور بندھا، ان کے لیے مرغن حلوے اور لذیذ کھانے جانے لگے، اور بیگم جان دیوانے خان کی درزوں میں سے ان کی لچکتی کمروں والے لڑکوں کی چست پنڈلیاں اور معطر باریک شبنم کے کرتے دیکھ دیکھ کر انگاروں پر لوٹنے لگی، یا جب وہ منتوں مرادوں سے ہار گئیں، چلے بندھے اور ٹوٹکے اور راتوں کی وظیفہ خوانی بھی چت ہو گئی۔ کہیں پتھر میں جونک لگتی ہے۔ نواب صاحب اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پھر بیگم جان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ علم کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن یہاں بھی انہیں کچھ نہ ملا۔ عشقیہ ناول اور جذباتی اشعار پڑھ کر اور بھی پستی چھا گئی۔ رات کی نیند بھی ہاتھ سے گئی اور بیگم جان جی جان چھوڑ کر بالکل یاس و خست کی پوٹ بن گئی۔ چولہے میں ڈالا تھا ایسا کپڑا لتا، کپڑا پہنا جاتا ہے کسی پر گروپ کاٹنے کے لیے۔ اب نہ تو نواب صاحب کو فرصت کی شبنمی پرتے کو چھوڑ کر ذرا ادھر توجہ کریں، اور نہ وہ انہیں کہیں آنے جانے دیتے۔ جب سے بیگم جان بیاہ کر آئی تھی، رشتہ دار آ کر مہینوں رہتے اور چلے جاتے، مگر وہ بیچاری قید کی قید رہتی۔ ان رشتہ داروں کو دیکھ کر بھی ان کا خون جلتا تھا کہ سب کے سب مزے سے مال اڑاتے، عمدہ گھی نگلتے، جاڑے کا سازو سامان بنوانے آن مرتے، اور وہ باوجود نئی روئی کے لحاف کے پڑی سردی میں اکڑا کرتی۔ ہر کروٹ پر لحاف نئی نئی صورتیں بنا کر دیوار پر سایہ ڈالتا، مگر کوئی بھی سایہ ایسا نہ تھا جو انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہو۔ مگر کیوں جیے کوئی پھر؟ بیگم جان کی زندگی جو تھی، جینا بدا تھا نصیبوں میں، وہ پھر جینے لگی اور خوب جی۔ ربوں نے انہیں نیچے گرتے گرتے سنبھال لیا۔ چٹپٹ دیکھتے دیکھتے ان کا سوکھا جسم بھرنا شروع ہوا، گال چمک اٹھے اور حسن پھوٹ نکلا۔ ایک عجیب و غریب تیل کی مالش سے بیگم جان میں زندگی کی جھلک آئی۔ معاف کیجیے گا، اس تیل کا نسخہ آپ کو بہترین سے بہترین رسالے میں بھی نہ ملے گا۔ جب میں نے بیگم جان کو دیکھا تو وہ 40-42 کی ہوں گی۔ اف کہ شان سے وہ مسند پر نیم دراز تھی، اور ربو ان کی پیٹھ سے لگی بیٹھی کمر دبا رہی تھی۔ ایک ادھے رنگ کا دوشالہ ان کے پیروں پر پڑا تھا اور وہ مہارانی کی طرح شاندار معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے ان کی شکل بے انتہا پسند تھی۔
मेरा जी चाहता था घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मांग भी बिगड़ी न देखी। क्या मजाल जो एक बार इधर से उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थी और अब्रू पर से जायद बाल अलहादा करने से कमाने सी खिंची हुई थी। आंखें जरा तनी हुई रहती थी, भारी भारी फूले हुए कपूटे, मोटी मोटी पलकें। सबसे ज्यादा जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाजिबे नजर चीज थी वो उनके होंठ थे। उमूमन वह सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होंठ पर हल्की हल्की मूछें से थी और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभार उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफेद और चिकनी थी, मालूम होता था किसी ने कसकर टाके लगा दिए हैं। उमूमन वह अपनी पिंडलियां खुजाने के लिए कूदती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वो बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफेद हाथ और सुडोल कमर। तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजवाना भी तो जिंदगी की जरूरियात में से था, बल्कि शायद जरूरियातें जिंदगी से भी ज्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम न था, बस वो सारे वक्त उनकी छपरखट पर चढ़ी, कभी पैर और कभी सिर और कभी जिस्म के और दूसरे हिस्सों को दबाया करती थी। अभी तो मेरा दिल बोल उठता था, जब देखो रब्बो कुछ ना कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो ना जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना छुए भी तो मेरा जिस्म तो सड़गल के खत्म हो जाए। और फिर वो रोज रोज की मालिश काफी नहीं थी। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटे पहले से तेल और खुशबूदार उपटनों की मालिश शुरू हो जाती, और इतनी होती कि मेरा तो तखय्युल से ही दिल लौट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का दौर। और उमूमन सिर्फ रब्बो ही रहती, बाकी की नौकरानियां बड़बड़ाती, दरवाजे पर ही जरूरियात की चीजें देती रहती। बात यह थी कि बेगम जान को खुजली का मरज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी कि हजारों तेल और उपटन मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं, जिस्म साफ चट पड़ा है। हाँ, कोई जल्द के अंदर बीमार हो तो खैर, नहीं भाई, ये डॉक्टर तो हुए हैं पागल। कोई आपके दुश्मनों को मरज है, अल्लाह रखे, खून में गर्मी है, रब्बो मुस्कुराकर कहती और उन्हीं महीन नजरों से बेगम जान को कूदती। और वो रब्बो, जितनी ये बेगम जान गोरी थी उतनी ही काली, जितनी बेगम जान सफेद थी उतनी ही ये सुर्ख, बस जैसे तपाया हुआ लोहा। हल्के हल्के चेचक के दाग, गठा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोन, बड़े बड़े फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते हैं, और जिस्म में से अजीब घबराने वाली बू के शरारे, और नन्हे नन्हे फूले हुए हाथ किस कदर फुर्तीले थे। अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर कूल्हों पर, वहां से रपटे रानों पर, और फिर दौड़े टखनों की तरफ। मैं तो जब भी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली काटने के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पजामे और सफेद झाग से कुर्ते, और पंखा भी चलता हो फिर भी वो हल्की धुलाई जरूर जिस्म पर ढके रहती थी। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता। वो हिलती जुलती बहुत कम थी, कालीन पर लेटी हैं, पीठ खुज रही हैं, खुश्क मेवे चबा रही हैं, और बस रब्बों से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती जाती। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती, और माशाल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बो और बेगम जान आम जलवों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू का मौज थी। जहाँ उन दोनों का जिक्र आया और कह कहे उठे, लोग न जाने क्या क्या चुटकुले गरीब पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से मिलती ही ना थी। वहाँ तो बस वो थी और उनकी खुजली। मैंने कहा कि उस वक्त मैं काफी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वो भी मुझे बहुत ही प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आग दे गई। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों से मार कुटाई होंगी, मारी मारी फिरूंगी, इसीलिए वो हफ्ता भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ गई। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी। सवाल ये उठा
कि मैं सो कहाँ। कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में, लिहाजा मेरे लिए भी उनके छपरखट से लगाकर छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 10-11 बजे तक तो बातें करती रही। मैं और बेगम जान चांस खोलती रहीं और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बो तो वैसे ही बैठी इनकी पीठ गुजार रही थी, ढंगिन कहीं की। मैंने सोचा, रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में घुप अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली। हाथी हिलना बंद हो गया, लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो रहो, बेगम जान ने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे की सी आवाज से कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतुल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ी, मगर यालुम्मा बहना पर हर दफा आकर अटक गई। हालांकि मुझे पूरी आयत याद है। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा गया। और फिर 2 आदमियों के फुसुर फुसुर करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, ये दूसरा कौन? मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर वोर तो नहीं? सो जाओ बेटा, कैसा चोर? रब्बो की आवाज ना आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नज़ारे का ख्याल भी न रहा। मैं हमेशा की बहनी में रात को डरना, उप उप कर भागना और बड़बड़ाना तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी न रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था, मगर दूसरी रात मेरी आंख खुली तो रब्बो और बेगम जान में कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छपरखट पर ही तय हो रहा था और मेरी खाक समझ में ना आया था और क्या फैसला हुआ। रब्बो हिचकियां लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह सपड़ सपड़ रकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी। मैं तो घबरा कर सो गई। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गाँव में लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही ना था। नवाब साहब के यहाँ कुछ दिन रहा, खूब जोड़े बागे भी बने, पर न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने ही ना आता। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई थी। बेगम जान न जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही, उनका जोर जोर टूटता रहा, किसी का छूना भी उन्हें ना भाता था। उन्होंने खाना भी ना खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं बेगम जान? मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं खुजा दूं? सच कहती हूँ। मैंने ताश के पत्ते रख दिए। मैं थोड़ी देर खुजाती रही और बेगम जान चुप्पी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था, मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सिर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी उनकी पीठ, चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं होले होले खुजाती रही। उनका काम करते कैसी खुशी होती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर जरा शाने से नीचे। हाँ, वाह भाई वाह। वह सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान जाहिर करने लगी। और इधर, हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था, मगर वह मुझसे कुछ बार नहीं थी और मुझे उल्टा फक्र हो रहा था। यहाँ हुई, तुम तो गुदगुदी करती हो। वाह, वो हंसी। मैं भी बातें कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी? वही सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्चा हूँ मैं? बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई? वो हंसी। गुड़िया नहीं तो बहुआ ले लेना, कपड़े पहनाना खुद, मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े। उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहाँ खुजली हो रही थी रख दिया। जहाँ उन्हें खुजली मालूम होती वो मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो बराबर मुझसे बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फ्रॉक कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूंगी कि इन्हें सी लाए। तुम्हारी अम्मा कपड़े दे गई हैं, वो लाल कपड़े नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसे हैं। मैं बकवास कर रही थी और हाथ न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा। बातों बातों में मुझे मालूम ही न हुआ। अब भी जब कभी उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखें पपोटे और वजनी हो गई, ऊपर के
होठ पर स्याही गिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ ठंडे याक थे मगर नर्म, जैसे उन पर की खाल उतर गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी थी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लोई की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाऊ सोने के बटन गिरेबान के एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घुट रहा था। मुझे एक न मालूम डर से दहशत होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें, मैं रोने लगी। दिल में वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गर्म गर्म जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो कोई जैसे भूत ना सवार था। और मेरे दिमाग का ये हाल कि ना चीखा जाए और न रो सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल हो गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझ गई कि अब मरी और वहां से उठकर सर पर भागी बाहर। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़कर सो गई। मगर नींद कहाँ, चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं चुकी थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रही, मगर उनके कमरे में कदम रखते दम निकलता था। और कहती किससे और कहती ही क्या कि बेगम जान से डर लगता है। तौबा, बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी, आज रब्बो में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी नमूनिया से। लड़की क्या मेरा सिर मुंडवाएगी? जो कुछ हो हवा गया तो और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया और खुद मुंह हाथ सिलफची में धो रही थी। चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुंह खुश्क करके बोली, जरा कपड़े बदल लूं। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलवाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग जाती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबत। अम्मा को हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को? और लड़के भी कौन, खुद भाई और दो चार मटरे मटरे जरा जरा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने की काई। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, फिर वहां ना टिकती। मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजे पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदल 16 सिंगार हुए और गर्म गर्म खुशबुओं के इत्र ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया और वह चली मुझ पर लाड़ उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी। सुनो तो। मगर मैं खली की तरह फैल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहाँ भैया मारेंगे चुड़ैल। उन्होंने मुझे प्यार से थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने दिल में सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अमियाँ खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बो ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी, टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वह मांग जो मैंने कभी बिगड़ी न देखी थी, झाड़ झंकार हो गई। ओहो हो, वह ओ, वो झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जत्नों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पांव झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। मैं चुहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सर सर फट कच। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथ उठा और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथ ने फिर लोट मचाई। मेरा रुआ रुआ कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिरहाने का लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथ फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, ये बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया और रब्बो मर्दुई तो है सदा की चट्टो। जरूर ये तर मार उड़ा रही है। मैंने नथने फुलाकर सूसू हवा को सूंघा।
सिवाय इत्र संदल और हिना की गर्म गर्म खुशबू के और कुछ न महसूस हुआ। लिहाफ फिर मरना शुरू हुआ। मैंने बहुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं लरस गई। मालूम होता था बू बू करके कोई बड़ा सा मेंढक फूल रहा है और अब उछल कर मेरे ऊपर आया। अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहाँ कुछ सुनवाई न हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग के दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोल कर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और पिचक गई। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोमा फीट भर उठा। अल्लाह! मैं गड़ाप से अपने बिछोने में